So I just got a DM and I don't reply to such messages often, but ये कुछ ऐसा मैसेज था जिससे I could relate. Like इसकी situation was kind of my situation, but थोड़ी सी different. He's saying कि Hurera bro, I just got a breakup and it was kind of situationship. Even though I was way working hard and learning trading forex, but she was so good in the beginning. But after 8 months, when she saw that no results are coming out, she also got she also got the victim card. But I'm still working on myself and hitting gym daily. But sometimes I feel alone and things. What if nothing works out? And what if I remain the same? Like I'm feeling, यार bro, मुझे वो old feeling आ रही है अपने आप से, जो मैं अपने आप को doubt करता था. All those like ये message पढ़ते ही मुझे वो feel आई है. I'm overthinking a lot, bro. Can you help me and reply me and give me a little bit motivation, bro? Motivation is a scam. Simple. Because I have started trading by watching you and still see you as the best trader in my country. Love you. Thank you. I'm not even attached with her right now, but she's enjoying her life and making new friends while I'm working on myself. But at some point, I think, what if nothing works out and I'm not having patience anymore? I don't know what to do now for real. I'm so helpless. Oh, this message was like ऐसा मैसेज था, मुझे थोड़ा इसने उसमें डाल दिया है कि यार वो फीलिंग क्या थी when I had doubt in my mind, when I had like nothing but just a hope कि one day I will change my life. So that all was just doubt. ये सारा हटा सिर्फ और सिर्फ पता है कैसे है? When I like shifted that negative energy into positive energy. किस sense में? All those negative thoughts, I replaced it with working on myself. Just working on myself. If I feel depressed, I used to work. If I feel sad, I used to work. If I feel happy, I used to work. And if I feel any emotions that somehow was negative, I used to change that emotion into something positive. Just like ये कह लो कि अगर मुझे loneliness feel होती थी तो मैं कुछ काम करने लग जाता था. उस प्रोसेस के बीच में ना I forgot everything. मैं सब कुछ भूल गया और मुझे सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि मैं कितना आगे आ गया. One thing is for sure, bro. One thing is for sure that work on yourself, your life will be good. Ignore those negative thoughts, ignore those noises जो कि तुम्हें नज़र आ रही हैं. हाँ, I know it's a breakup and it's hard for you right now. लेकिन बाद में जाके तुम्हें ये चीज़ बिल्कुल भी कुछ नहीं लगेगी. You would feel like कि ये जैसे एक फेज़ था और हर मर्द को इससे गुजरना है. You have to understand कि yes, this is just a phase जो कि हर मर्द गुजरेगा. And let me tell you something, bro. You think that women was special? अगर तुम्हारे दिमाग में उसके लिए कुछ भी मोहब्बत है या if any way तुम्हारे दिल में कोई भी attachment है उसको लेके, as if you feel lonely, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ. Art of Being Alone, यही बुक है. हाँ, यही बुक है. इसको पढ़ो and you will start liking अकेलापन. You would want के हफ्ते में तुमने 4 दिन दोस्तों के साथ गुजारे तो 3 दिन तुम अकेले गुजारो. मुझे याद है एक ऐसा टाइम के सऊद बैठा हुआ मेरे साथ. मैं रात को इवन रात को भी तुझे कॉल पे लेके अपने साथ होता था. आई यूज टू फील अलोन और मैं लिटरली रोता था. वो मुझे बस अजीब सी ना तन्हाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था. और मुझे रात में ख़ास तौर पर कितनी रात को तू मुझे जब छोड़ के जाता था घर, मेरी हालत क्या होती थी? मैं बोलता था कॉल कर यार भाई, कॉल कर यार भाई, कॉल कर. मैं अकेला रहने से डरता था. आई यूज्ड टू फील अलोन, आई यूज्ड टू फील डिप्रेस्ड. और वो बहुत ज़्यादा, मैं यकीन मानो अभी भी सोचता हूँ ना, मुझे अजीब लगता है कि कैसे भाई वो मैं क्या सोच रहा था उस वक्त. काश उस वक्त मेरे पास कोई होता मुझे बताने वाला, जैसे कि अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इट विल ऑल बी गुड. मुझे बताता रहता था, लेकिन वो मेरे माइंड में तो यही होता था, नहीं इसको नहीं पता ये पेन, इसको नहीं पता इन सब चीज़ों का.
ऐसा नहीं होता ब्रो, एवरीथिंग विल बी ए ओके। तुम आज जिस हालत में हो, इट विल बी फाइन, इट विल बी फाइन। इसके साथ सिर्फ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वक्ती तौर पर जो तुम्हारी सैडनेस है, इसको अपनी पूरी ज़िंदगी के साथ मत जोड़ो। डोंट थिंक कि तुम पूरी ज़िंदगी इस तरह सैड रहोगे, या तुम्हारी जो सिचुएशन है, तुम्हें मेरी वो वीडियो याद है, आई डोंट वॉन्ट दिस वीडियो टू बी एडिटेड और इन एनी वे, आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी ऑर्गेनिक, जैसे ये है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। नॉट फेकिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट बीइंग रियल। द थिंग इज के मेरी वीडियो तुम्हें याद होगी, दैट वन वीडियो जहाँ पे मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ एंड थिंकिंग कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, थिंकिंग कि इफ दिस ऑल इज़ अ लाई, और ये जो मेरे सामने लड़के बैठे हुए हैं जो हंस रहे हैं, मैं फ्राइज़ की शॉप पे काम कर रहा हूँ, मे बी इनको कुछ असलियत पता है दुनिया की, जो कि ये सारे हंस रहे हैं। मे बी मैं इस वक्त तकलीफ़ में हूँ, आई मे बी डूइंग समथिंग रॉन्ग, मे बी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मे बी दैट्स वाई ये सारे मेरे से अच्छे रह गए। ये मेरी सोच थी उस वक्त की, बट ऐसा नहीं है ब्रो। आज वही सारे लड़के इतना वर्स कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, एंड आई एम लिविंग माई लाइफ ब्रो, आई एम लिविंग माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। आई विल नॉट फ्लेक्स एनीथिंग, मेरी लाइफ तुम्हारे सामने पड़ी है, यू नो बेटर देन मी, आई विल जस्ट सिंपली से अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो टाइम बहुत मुश्किल था ब्रो, seeing myself in the mirror, cannot look in my eyes, अपनी आंखों में मैं नहीं देख सकता था उस वक्त, thinking कि मे बी शायद मैं गलत हूँ। ये सारे डाउट्स हर मर्द के जहन में आते हैं when he is going through a tough phase, लेकिन all you have to do is just stick by the plan, जो कि तुम्हारा प्लान है, stick by the rules, stay patient, be consistent, और सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ जो तुम्हारे जहन में इस वक्त चल रही है इज़ जस्ट अ डाउट, शैतान दे रहा है, जस्ट सिंपली से दैट्स अ नेगेटिव थॉट जो कि तुम्हें इस वक्त शैतान दे रहा है। एंड लड़की की बात करते हैं, लेट्स से द वन गर्ल जो कि तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, सो तेरे सामने हूँ मैं। आई यूज्ड टू से कि लाइक आई एम द काइंड ऑफ गाय जो मेरे लाइक आई हैड अटैचमेंट इश्यूज ब्रो, मैं बहुत ज़्यादा फील कर जाता था, आई यूज्ड टू फील एवरीथिंग। हल्का सा कुछ होता था भाई, मैं अपने दिमाग वही में डिप्रेशन में चला जाता। आई वाज दैट काइंड ऑफ गाय जो माइंड से बिल्कुल एक लूज़र था, ज़ीरो सेल्फ कंट्रोल, ज़ीरो माइंड कंट्रोल। नाउ आई एम द काइंड ऑफ गाय जहाँ पे अपने आप पे मैंने इतना काम किया है कि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। सो यू हैव टू बी लाइक अ पर्सन जिसको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े किसी चीज़ से। एंड दीज वुमेन, दीज फ्रेंड्स, हर एक चीज़ से मैं धोखा खा के यहाँ पे बैठा हूँ। सो आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दीज, बिकॉज जेन्युइनली आई डोंट केयर। अब ऐसा बन गया हूँ मैं, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनी वन इन दिस वर्ल्ड। मैन टू मैन टॉक है ब्रो, मैन टू मैन टॉक। वो औरत जो तुम बड़ा भी इस वक्त सोच रहे हो इट्स स्पेशल, शी इज़ नॉट स्पेशल। दुनिया में बहुत खूबसूरत औरतें हैं, तुम्हारे नसीब में जो लिखी है वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगी। शुक्र करो कि वो तुम्हें छोड़ के चली गई है, ठीक है, गलती उसकी भी नहीं है, उसकी गलती नहीं है, अच्छा किया उसने तुम्हें छोड़ा। मे बी ये ज़रूरत था तुम्हारी ज़िंदगी में, मे बी ये सेल्फ डेवलपमेंट का, कैरेक्टर डेवलपमेंट का चैप्टर तुम्हारी लाइफ में कुछ ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए तुम्हें वो छोड़ के गई हो। उसका थैंक यू बोलो कि थैंक यू, तुम मुझे छोड़ के गई, एंड वन डे यू गोना रिग्रेट दैट। देखो, आई यूज्ड टू लिसन टू ट्रिस्टन टेट उस वक्त, वो कहता था द बेस्ट रिवेंज इज़ नॉट गिविंग अ फक, पहला, एंड द बेस्ट रिवेंज इज़ बीइंग सो सक्सेसफुल इन योर लाइफ कि हर कोई तुम्हें बोलेंगे यार डैम आई वंस न्यू हिम, आई वंस न्यू हिम। तो अगर ट्रिस्टन टेट ये बात उस वक्त बोल रहा था, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, कल को तू भी ये बात बोलेगा जब तू कामयाब हो जाएगा। और कामयाब तू होगा या नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ़ यू जेन्युइनली वांट इट ब्रो, यू विल अचीव इट। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज यंग मैन दे डोंट जेन्युइनली वांट इट, उनको जेन्युइनली वो चीज़ चाहिए नहीं, दे जस्ट फेक इट। बिकॉज वो इंस्टाग्राम पे हुरैरा को देखते हैं, इंस्टाग्राम पे एंड्रू टेट को देखते हैं, लिविंग हिज ड्रीम लाइफ, बाइंग हिज ड्रीम कार्स, डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज
यार, बस इस तरह की लाइफ की एक्टिंग करनी है मैंने। ये मैनिफेस्ट में वॉनाबीज जिसको हम बोलते हैं, दे आर वॉनाबीज, दे जस्ट वांना बी लाइक समवन। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो किसी को दिखाने के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। तुम अभी इस वक्त ये सोच रहे हो कि तुमने बदला लेना है, तुमने दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन के उसको दिखाना है। चेंज दिस माइंडसेट। चलो इसी नियत से चल लो, इस गुस्से को यूज़ कर लो, बट जब तुम बन जाओगे एट दैट टाइम तुम भूल चुके होगे सब कुछ कि तुमने स्टार्ट किस लिए किया था। व्हाट वाज दैट सिनेरियो जहाँ पे तुमने ये सोचा कि नाउ यू विल बिकम अ मिलियनेयर, यू विल चेंज योर लाइफ, यू विल गो टू द जिम, यू विल गो टू लाइक यू विल वर्क ऑन योर लाइफ। सिंपल यार, ये सोचा तुमने कब था, ये तुम भूल चुके होगे। इन शॉर्ट अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूँ कि तुम भागते भागते इतना आगे आ जाओगे ना, यू वुड से कि ब्रो मैं इतना आगे आ गया हूँ। जब तुम पीछे मुड़ कर देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि कितना ज़्यादा तुम आगे आ गए हो। सो मैं यही बोलूँगा, भागने में इतना ज़्यादा बिजी रहो कि तुम्हें वो चीज़ भूल जाए कि वाई यू स्टार्टेड। मैंने भी एक बात कही थी कि तुम नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव कन्वर्ट करते रहोगे ना तो तुम भूल जाओगे। तुम प्रोसेस में काम करते करते तुम प्रोसेस में इतने मगन हो जाओगे, यू वुड से कि मैं किस लिए आया था यहाँ पे। मेरा उस फलाना लड़की ने दिल तोड़ा था, हाँ चलो आज वो उसकी शादी हो गई है, आज चलो उसका बच्चा हो गया, लेट्स अज्यूम, बट हाँ तुम क्या कर रहे हो इस वक्त डिपेंड करता है तुम पर, और फॉर अ फैक्ट उसको भी तुम याद नहीं होगे, सही है। लेकिन हाँ बेस्ट रिवेंज ये है ना कि कल को शी लुक्स एट योर इंस्टाग्राम, शी लुक्स एट यू, शी लुक्स एट योर प्रेजेंट जो कि उस वक्त होगा तुम्हारा, शी वुड से कि यार काश अगर उसके जहन में अगर ये चीज़ नहीं आई ना तो यू हैव फेल्ड एज अ मैन। उसके जहन में अगर ये नहीं आया कि काश अगर इससे मैंने शादी की होती तो शायद मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती, अभी जिस तरह मैं गुजार रही हूँ तो शायद मैं इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। अगर तुम्हारे जहन में ये उसके जहन में ये चीज़ नहीं आई तुम्हारे लिए, देन यू हैव फेल्ड एज अ मैन, यू विल बी अ लूज़र, यू आर अ लूज़र इस टाइम पे। एंड आई वांट कि तुम अपने आप को एज अ लूज़र ही देखो, बिकॉज जितना ज़्यादा गिरा हुआ इस वक्त तुम फील करोगे उतना ज़्यादा ही कल तुम उठोगे। मैं सब कुछ फेस करके यहाँ पे आज सर उठा के फिर रहा हूँ। आई फील हैप्पी एंड आई वुडंट टॉक अबाउट माई लाइक रिलेशनशिप्स, ठीक है, मैं कभी भी इस चीज़ को पब्लिक नहीं करूँगा। लेट्स अज्यूम हो सकता है मेरी बीवी भी हो, एंड्रू की तरह, हो सकता है मेरी बीवी हो सकता है मेरे बच्चे हो सकता है कुछ ना हो सकता है मैं इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करता हूँ। सो मैं सिंपल तुम्हें ये बात बताता हूँ कि योर लाइफ वुड बी गुड ब्रो, यू वुड हैव योर ड्रीम वाइफ, यू वुड हैव योर, गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं ड्रीम वाइफ में, जनरली यू वुड हैव अ वुमन बाय योर साइड। एज अ मैन आई नो कि एक औरत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में, एक अच्छे कामयाब इंसान की ज़िंदगी में, मर्द की ज़िंदगी में एक औरत को होना ज़रूरी है। बिकॉज विदाउट वुमन मैन इज़न्ट अ मैन ब्रो, मैं ये समझता हूँ। एंड यू नीड अ गॉडली वुमन बाय योर साइड, सही है, यू नीड अ वुमन बाय योर साइड जो कि जब तुम पर मुसीबत आए वो खुदा की तरफ भागे। ऐसी औरत तुम्हें मिल जाएगी, दैट्स व्हाई आई कॉल हर अ ड्रीम वाइफ। यू विल गेट योर ड्रीम वाइफ सून ब्रो, ठीक है, बट इसकी एक शर्त है। इसकी शर्त यह है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर लाइफ। इफ़ यू डोंट वर्क ऑन योर लाइफ तुम्हें तुम्हारी जैसी ही औरत मिलेगी। यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व ब्रो। इफ़ यू वर्क ऑन योर लाइफ, मेक योर लाइफ बेटर, तुम्हें लाइक पैसा कमा लेते हो, ज़िंदगी में काम करते हो, अच्छा करते हो अपने लिए, तुम्हें खूबसूरत बीवी मिलेगी दैट विल ओबे यू, तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगी इन एवरी वे, जो भी तुम्हारी नीड्स हैं तुम्हें फुलफिल करेगी, तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करोगे, ये बात याद रखना। हाँ अभी के लिए तुम्हें वो नज़र नहीं आ रही, मैन टू मैन टॉक है, ठीक है, मैन टू मैन टॉक। इफ़ यू आर अ वुमन देन इट्स फॉर यू, इसको अपने जेंडर के हिसाब से देख लो। अगर एज अ वुमन मैं एडवाइस दूँ, मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि यू विल गेट अ मैन दैट विल लव यू, दैट विल गिव यू एवरीथिंग, प्रोवाइड यू एवरीथिंग जो कि तुम्हारी नीड्स है, सही है, ही विल टेक केयर ऑफ यू, टेंशन नहीं।
गम, सब कुछ विल बी वर्थ इट। ये बात याद रखना। इस वक्त तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा ही गम क्यों ना हो, whatever the pain you have right now will be fine। वक्त सब ठीक कर देता है, ये लोग ऐसी बातें नहीं करते थे। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। अब वो तुम इस वक्त तुम्हें पता कैसी फीलिंग आ रही होगी, यार उराना भाई ये बातें क्यों कर रहा है इस तरह डिप्रेसिंग, मुझे वो लड़की चाहिए। यू विल बी लाइक दिस, बोलोगे यार काश बस किसी तरह से वो लड़की आ जाए मेरी जिंदगी में। उराना भाई क्यों ऐसा बोल रहा है कि कोई और लड़की मुझे मिलेगी। बहुत बच्चों भाई क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि कोई और, मुझे वो लड़की नहीं चाहिए कोई और, मुझे बस वही चाहिए यार, मुझे वही चाहिए यार। यू विल बी लाइक दिस। ऐसा बड़ा भाई मैं तुम पर हंसूं, इस वक्त तुम रो रहे होगे सेइंग कि भाई काश मुझे वो लड़की वापस मिल जाए, बट आज से 3 साल बाद या 2 साल बाद या 1 साल बाद अगर तुम अच्छे बच्चे हो ना, मेरी अच्छी तरह बात मानते हो, 1 साल बाद तुम बोलोगे यार उराना भाई आपकी वीडियो पे मैं आज हंसता हूँ, जब मैं वो पहले मैं रो रहा था आज मैं हंसता हूँ, क्योंकि मुझे आज वो सारी बातें समझ आती हैं जो आप सारी बातें कर रहे हो। इस वक्त तुम्हारे जहन में उसका चेहरा नहीं है ना असल में, वो जो दूसरी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, जो तुम्हारी असल बीवी बनकर आएगी, जो तुम्हारी वाइफ ही बनकर आएगी, जो तुम्हें इतना प्यार करेगी कि यू विल लव योर लाइफ, यू विल स्टार्ट लविंग योर लाइफ अगेन। ये चीज़ का प्रॉमिस मैं तुमसे करता हूँ, ठीक है? बिकॉज आई कैन गारंटी यू दिस, इफ़ यू वर्क ऑन योर लाइफ, इफ़ यू जस्ट put in some work, be consistent and just try to be happy, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। You will stop caring about these little things in life, जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। क्या औरत छोड़ के चली गई, these are very little things bro। You have your parents, focus on them bro। एक लड़की जिसको साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, चलो 10 साल भी रही हो तेरे साथ यार, तुझे वो छोड़ के चली गई, why the fuck would you care about her bro? चलो तुमने बोला तुमसे बात कर रहा हूँ ना, सबसे बात कर रहा हूँ, ये सब की स्टोरी है। If you're still attached with her, then shame on you. Be a man bro। I wouldn't say just वो आप ही शादी की, no bro, man up, don't accept her। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना ऐसी औरत को। सॉरी ये बातें मुझे तू बताता था, याद कर, बहुत पहले ही बात। Don't accept her, भाड़ में जाए। She lost you brother। ऐसा माइंडसेट रख के it's never your loss, ठीक है? But yes वो टाइम बताएगा। हाँ अभी के लिए चलो उसको नजर नहीं आ रहा है कि उसका लॉस है, but future will tell you bro। वो उस बंदे पे डिपेंड करता है कि उसका उस loss बंदे पे डिपेंड करता है, उस बंदे पर डिपेंड करता है कि वो प्रूव करता है इस चीज को कि नहीं। हाँ it's like two way situation। ये मत देखो कि मैं कितना लॉयल था, ये चीज लॉयल fuck it bro। दोस्तों में मैं कितना लॉयल था यार, मैंने इसलिए बोला था वो नहीं समझ ले कि कितना लॉयल था। ना ब्रो, भाई इस वे में नहीं बोल रहा। औरत अगर मैं एज अ मैन बात करूँ ना, औरत ये नहीं देखेगी कभी कि तू कितना लॉयल है उसके साथ। औरत दिमाग से सोचती है, सही है, तो सोचता है। बायोलॉजिकली मैं तुम्हें बताता हूँ कि बायोलॉजिकली एक औरत कैसे सोचती है। पुराने ज़माने में जब खूंखार मर्द होते थे ना, जब जानवर होते थे खूंखार, तो औरत ये देखती थी क्या ये मेरे बच्चों को बचा पाएगा, क्या ये मेरे बच्चों की हिफाजत कर पाएगा। उस टाइम पे उस तरह औरत चूज़ करती थी, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन होता था ना उसको ज़्यादा चूज़ किया जाता था। अब ये इस ज़माने में बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा मैं कि बॉडी बना ले, ठीक है? तू जिम जा रहा है, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट, डिसिप्लिन आएगा तेरी ज़िंदगी में, लेकिन बॉडी बनाने से वो लड़की तेरे पास कभी भी वापस नहीं आने वाली, ये बात याद रखिए। और नहीं सॉरी वापस तो लाना ही नहीं है ना, सॉरी गलत हो गया मैं यहाँ पे, वापस नहीं लाना। तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छी औरत तब आएगी, गॉडली औरत तब आएगी, यू वर्क ऑन योर लाइफ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर ओल्ड पेरेंट्स, जिनके बारे में तुम अभी इस वक्त सोच नहीं रहे। इस वक्त तुम्हें सिर्फ वो जवान खूबसूरत चेहरा नज़र आ रहा है ना अपनी आंखों के सामने, जो कि बड़ी खूबसूरत सी थी, और तुम देख रहे हो कि यार ये औरत मेरी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी थी मेरे लिए, अगर वो होती तो एक मैं ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाता। अच्छा वो तेरी ज़िंदगी से गई ना, नाउ योर रियल लाइफ स्टार्ट्स, आज के दिन से तेरी लाइफ स्टार्ट होगी। एंड मैंने तुम्हें यहाँ तक थोड़ी लंबी इसलिए कर रहा हूँ ना कि दिल कर रहा है मेरा, फक इट, नहीं सुनना ना सुनो, बट एज अ बड़ा भाई
मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रहा हूँ। The thing is, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि she will never come back. Stop thinking कि वो कभी तुम्हारे पास वापस आएगी, है ना? 1 साल बर्बाद कर दोगे तुम पूरा अपना इस इंतजार में कि शायद वो वापस आ जाए, शायद उसको मेरा असली प्यार का पता लग जाएगा। ओह she will think कि कितना लॉयल था मैं, जब उसको इस माशरे में कोई लॉयल बंदा नहीं मिलेगा तो वो बोलेगी कितना लॉयल था। तब तक वो ना ब्रो, छोड़ो, आई डोंट वांट टू से दैट, मैं उस लाइन में नहीं जाना चाहता। तब तक वो बाजारी हो चुकी होगी, बाजारी हो, अचार खा रही होगी। फिर वो अचार का, हाँ एग्जैक्टली मैं बोलने लगा था। मैंने कहा जब तक तुम अपना ये टाइम इस सोच में वेस्ट करोगे ना कि शी विल कम बैक, शी विल कम बैक, तब तक ना वो अचार खा रही होगी, उसके बच्चे की न्यूज़ आई हुई होगी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि उसकी शादी हुई है। ठीक है ब्रो, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास वो वापस आएगी, शी विल नेवर कम बैक। चाहे तू रो, पीट, फाड़, मार, नशे काट, जो तू अपनी से इस तरह हरकतें मैंने करते हुए देखा बहुत से लड़कों को, तू ये कर, शी विल नेवर कम बैक, उल्टा और ज़्यादा दूर जाएगी इससे। छोड़ दे, गई वंस देखो, अ वेरी वाइज मैन सेड, अगर वो खुद छोड़ के गई है ना, कभी भी उसको कबूल नहीं करना। अ वेरी, नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, हजारों मर्दों ने मुझे ये बोला, इफ शी लेफ्ट यू नेवर एक्सेप्ट हर, शी विल लीव यू अगेन। किसी न किसी बात पे तुझे वो छोड़ के इसने जाएगी। एक बार धोखा दे दिया, धोखा नहीं, छोड़ के गई तुझे, बेशक इसलिए छोड़ के गई कि तूने कुछ बुरा कर दिया था और समथिंग, यू डिड समथिंग रॉन्ग, ब्रो शी विल लीव यू अगेन, शी विल लीव यू अगेन। तो ऐसी औरत के पास जाना ही क्यों, ऐसी औरत को अपने पास लाना ही क्यों? चूज अ गॉडली वुमेन ब्रो, वन एडवाइस, चूज अ वुमेन जो कि और देखो, हो सकता है स्टार्ट में, मुझे याद है, तुम्हें पता होगा कि स्टार्ट में तो हर कोई अच्छा होता है, असलियत तो ऑब्वियसली वक्त गुजार के आता है ना, पता असलियत सामने आ जाती है। और अगर तुम्हारे निकाह में आ जाती तो वो अपनी लॉयल्टी प्रूव कर देती कि हाँ यार कुछ किया था उसने तेरे लिए। नहीं आई, भाड़ में डाल भाई, भाड़ में, फक इट। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि वो वापस नहीं आने वाली, तेरा दिल टूटे इस बात से, कुछ भी हो। मैंने तुझे ये भी बता दिया, मैन अप, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है। मैंने तुझे ये भी बता दिया कि इफ़ यू वर्क ऑन योर लाइफ, तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मिलेगी, सबसे अच्छी औरत मिलेगी, सबसे अच्छी औरत मिलेगी। सो अपने स्टैंडर्ड्स हाई रख बहुत ज़्यादा, एंड वेट फॉर दैट गॉडली वुमेन कि तुम्हारी ज़िंदगी में आए, वो तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। उसकी सिर्फ एक मुस्कुराहट तेरी ज़िंदगी बदलेगी। तेरा मूड ख़राब है तो उसके पास जाके बैठेगा, तेरी बीवी होगी अपनी, वो निकाह में होगी, तेरे वो सर को पकड़ के अपने सीने पे लगाएगी, दुनिया के बारे में भूल जाएगा तो, सारे गम भूल जाएगा अपने तो। उसको असली प्यार बोलते हैं। ये आजकल का प्यार में ये असली प्यार नहीं है, समझा? ये सारी बातें तो समझ आई। एक और लड़के ने जो बात बोली थी कि समटाइम्स आई फील वेरी लोनली, सो आई थिंक एज अ मैन, इफ यू हैवंट एक्सपीरियंस बीइंग लोनली, you will never become a man. हाँ, अगर if you're experiencing being lonely, then you will become a man, and a strong man, जिसको सब look forward करेंगे। I have experienced loneliness. सऊद यहाँ पे बैठा है, he has experienced loneliness. किया experience कभी तूने loneliness? और थोड़ा फेस था। हाँ, थोड़ा फेस था। It depends on you bro. Depends on you कि अगर तुम ऐसे, मतलब सराउंड योर सेल्फ विद पीपल जो कि तुम्हें पुश करें, पहला चीज़, ठीक है। भाई हमारे पास ऐसे दोस्त भी रहे, लिटरली उनको बंदी छोड़ के जाती थी, वो बिल्कुल मरने की स्टेज पे आए होते थे, हम हंस रहे होते थे कि यार ये इसको देख क्या सीन कर रहे हैं। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। मुझे भी लगता था कि ओह मुझे वो लड़की छोड़ के गई, शी वाज एवरीथिंग टू मी एंड आई वाज लाइक। तो मुझे एंड्रू टेट ने सिंपल एक बात की थी, अगर तुझे लगता है वो औरत तेरे लिए स्पेशल है, वो नहीं है स्पेशल, शी इज नॉट स्पेशल। देयर इज प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी ब्रो। वो भी एक मछली थी ब्रो। नहीं वो मछली नहीं थी, वो मुझे बस वही मछली चाहिए थी। इससे अच्छी मछलियां मिल जाएगी, इससे अच्छी मछली मिलेगी तुझे, ज्यादा अच्छी मछली मिलेगी। वेट फॉर दैट ब्रो। थैंक गॉड कि तुझे वो छोड़ के गई। एंड एक्सपीरियंस लोनलीनेस के लिए मैंने तुझे बताया
कुछ बुक्स पढ़, तू अपने आप पे काम कर, तू अच्छी अच्छी पॉडकास्ट देख, कुछ सीख भाई। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ शेयर करूँ, मेरा ना ताज़ा ब्रेकअप हुआ था, तो मैं पूरा दिन ना फेसबुक पे ना वो वीडियोस देख रहा होता था हंसने वाली, फनी। आई वॉज कीपिंग माई सेल्फ बिजी इन अ सेंस कि मैं अपने आप को ना कॉन्टीन्यूस डोपामिन दे रहा था, वीडियोस देख रहा हूँ ताकि बस मुझे किसी तरह वो याद ना आए। पता है जैसे ही मोबाइल बंद करता था ना, साइलेंस होता था, मेरा दिमाग फटता था, वही मेरा दिमाग फटता था। आई यूज्ड टू बी लाइक उफ क्या करूँ मैं, सांस मेरी फूलने लगी, मैं दोबारा वीडियोस खोल लेता था, मेरी सेहत ख़राब हो रही थी। आई वॉज फीलिंग लाइक मुझे उल्टियाँ आने लगती थी जैसे ही मैं फ़ोन बंद करता था, और फ़ोन खोल के रखता था तो ही मैं रात की 3 4 बजे तक मैं जागता रहता, नींद से मरने लगता था मैं, उसके बाद सोता था और सुबह जल्दी उठ जाता था, नींद नहीं आती थी, जैसी आँख खुलती थी वो याद आ जाती थी, ओह छोड़ के चली। तो ये सिर्फ एक वीक माइंड की निशानी है, ठीक है। कोई प्यार नहीं था वो, आई पर्सनली नो, कोई प्यार नहीं था, कोई ऐसी अटैचमेंट नहीं थी, बट दैट वाज सम एग्जांपल ऑफ अ वीक माइंड। एक जो वीक दिमाग होता है ना उसको नहीं। अच्छा चलो, इसकी ना 2-3 चीज़ें मैंने पढ़ी थी इसके बारे में, तो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। मैंने सुना है कि जो तुम्हारा माइंड है ना, उसको लेट्स अज्यूम उसको नहीं पता कि तुम ये थॉट लाना चाह रहे हो, ये थॉट नहीं लाना चाह रहे हो। उसके दिमाग में जब कोई थॉट आती है, ही इज़ लाइक ओह अच्छा ये एंजॉय कर रहा है इस थॉट को, मैं इसको ये थॉट देता रहता हूँ, मैं इसको थॉट ये दूंगा, अच्छा ओह ही इज़ एंजॉयिंग हिज थॉट्स ऑफ एक्स के थॉट्स, इसको मज़ा आ रहा है। मतलब अब मज़ा क्या आ रहा है, उसको मज़ा नहीं आ रहा तुम्हें, बट तुम जब दिमाग में बार बार सोच रहे हो ना ये चीज़ें, तुम्हारे दिमाग को ये लग रहा है कि ये खेल रहा है उन थॉट्स के साथ, बैक एंड फोर्थ जब करते हो, ओ नहीं सोचना ना मैंने, अब तुम ये सोचते हो कि यार मैं तो अपने दिमाग में उसके बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन इन दी एंड तुम यही सोचते हुए उसके बारे में सोच रहे हो। You're thinking about her in every way, चाहे तुम ये बोलो कि नहीं मैं नहीं सोच रहा उसके बारे में, but you're thinking about her bro। So इसका सिंपल हल ये है कि तुम्हें दिमाग थॉट दे रहा है, छोड़ो यार, पी जाओ, वक्त तौर पर छोड़ो, जस्ट लीव इट ब्रो, पी जा, कुछ नहीं होता। ये गम यार बेंचोद, आई एम फीलिंग दैट हैवी हार्ट, वो जो हैवी हार्ट फील हुआ है तुझे, वो ऑफ फीलिंग ऑफ के क्या बोलूं उस लड़के को मैं भी, आई कैन फील यू ब्रो, आई नो, आई हैव बीन थ्रू दिस, आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग, यू विल बी गुड। खाना खाता था, गले में दर्द होती थी, गले से नीचे नहीं जाता था, वो याद आती थी, ओ मैं याद वीक नहीं खाया खाना, एक पूरे दिन में मेरी माँ मेरे लिए रोई है कि तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में। भाई मैं इस लेवल तक चूतिया था उस एक लड़की के पीछे। भाई मैं मैं इमोशनली वीक बंदा था उस टाइम पे, वो जो कहते हैं ना इमोशनली स्ट्रांग बंदा, तो वो इसका मतलब ये होता था। इमोशनली स्ट्रांग बंदा वो है दैट नोज हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस इवन इन हार्ड टाइम्स। और वो इंसान बचपन से ऐसा नहीं होता ब्रो, यू हैव टू गो थ्रू दिस फेज, यू हैव टू बी अ मैन, यू हैव टू मैन अप, यू हैव टू से फक इट ब्रो, आई विल चेंज माय लाइफ। हाँ इजी नहीं होगा, आई एम नॉट सेइंग दिस इट विल बी इजी, इतना इजी नहीं है एज यू थिंक, इट्स वेरी हार्ड ब्रो। सुबह उठता था, even I had this car, like उस time पे I had my car, I was doing good, still I used to feel a burden in my heart कि यार oh fuck, मुझे loneliness feel होती थी। वो सुबह का 8 बजे उठना और मैं खाली रोड देखता था, मेरा दिल बंद होता था, डाला था तेरे पास, हाँ मेरा दिल बंद होता था। I used to feel like bro this is like अजीब फील होता था मुझे बहुत ज्यादा, a burden in my chest कि maybe काश वो होती तो शायद I wasn't like feeling so lonely। पहुंच गया मैं, सब अच्छा हो रहा होता। मुझे लगता था यहाँ पे वो होती तो maybe my life would be good, maybe अगर वो होती तो maybe इतना loneliness मैं फील नहीं करता ब्रो। I feel it in my chest right now। वो फीलिंग इतनी गंदी थी कि मेरे गले में कुछ हो ब्रो, मुझे वॉमिटिंग फील हुई है अभी लिटरली। मैं इतना इमोशंस फील कर जाता हूँ ना, मुझे वो जो मुझे गिल्ट हो रहा है कि आई वाज वेस्टिंग सो मच ऑफ माय टाइम इन दैट यूजलेस फेज ब्रो। चलो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, क्यों?
क्योंकि that made me a man who I am today bro. लेकिन वो जो उल्टियां आने वाला है ना ब्रो, वो कि यार वो कुछ गंदा होता है यार. That feeling is bad bro. बता नहीं सकता. नहीं बता सकता. I can feel it in my chest. वो सिर्फ वो गंदा feeling जो था bro, that is so bad bro. हाँ, but now I feel it was so worth it bro. I understand love, I understand friendships, I understand those feelings, I understand pain, I understand joy. I am a man bro. At that time I was a fucking filthy pussy, wasting my life on a useless women bro. सही है? No disrespect to anyone, but don't waste your life bro. I know you're looking at her right now saying कि यार she's living her life. Fuck her bro. Fuck her bro. भाड़ में जाए. Let her live her filthy life. Choose a godly woman bro. Relax. Don't think oh maybe she's feeling bad. शायद वो पूरा feel कर रही हो. Maybe वो stop all this bullshit. Stop all this crap. Focus on your life. Your life would be good. क्या तुम्हारी लाइफ इस इन अंकल से ज्यादा मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम. इन अंकल से ज्यादा मुश्किल है तुम्हारी लाइफ? अस्सलाम वालेकुम. ऐसा वो लड़की तुझे छोड़ के गई क्या? ये जो बैठे हुए हैं अपनी फैमिलीज के लिए ब्रो, लेकिन इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे या बड़े बच्चे होंगे घर में इस वक्त बैठे हैं कि हमारा बाप कहाँ है यार. तुम एक लड़की छोड़ के चली गई. You're thinking about her. Do shukr bro. There's so many examples bro in this life जहाँ पे तुम इन्होंने ना लोगों के गम नहीं देखे अब तक. कहाँ देखा है तुमने गम यार? देखी नहीं है तुम लोग. रात के 11 बजे ब्रो, इस वक्त कोई बंदा बिस्तर में गरम लेटा हुआ है और यहाँ पे ये लोग ख्वार हो रहे हैं, गेटों पे खड़े हुए हैं, सलाम कर रहे हैं लोगों को. रात सब सर अस्सलाम वालेकुम, सर अस्सलाम वालेकुम. रात हर किसी के लिए सेम नहीं होती. You haven't experienced any pain in your life bro, so be a man up. याद है हमने रात को गुजारा था, हमने चले था हमारा क्या हाल. Oh damn bro. ओफ, हमने रात बाहर गुजारी थी. I was feeling so blessed कि अल्लाह तेरा शुक्र है I'm going through like जो अभी मैं गुजार रहा हूँ. like damn bro, छोड़ो वो ऑफ द टॉपिक है, लेकिन you have to be blessed. If you're listening to me, you're blessed bro right now. कोई एडवाइस देने वाला है तुम्हें इस वक्त? This is so bad bro. इनको देख के अभी दिल मेरा भारी हो गया, इनको देख के खास तौर पर. I feel के like उस वक्त तो मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ ये है कि every man has to go through that phase. You have to be a man and तुम उसके बगैर नहीं अचीव कर सकते लाइफ में कुछ. There's so many things जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, but I would end up being depressed. I would end up feeling bad. क्यों? Not because of myself, just because of those men जो कि इस वक्त रूम में बैठे ये सुन रहे हैं. Because of those men जो कि इस वक्त bro, a man is having so much pressure bro. As of you're a woman, I know women are very strong. आजकल की औरतें उस तरह औरतें नहीं है. वो तुम अगर ये सुन रही हो तो you are a very different woman from every other else. I just want to say कि हाँ ठीक है, मुझे औरतों की लाइफ का इतना नहीं पता, लेकिन I personally feel कि मर्द की जिंदगी में so many tensions, family pressure. You have to make it bro. You have to make it. You have no fucking choice. You cannot end up marrying a man. You cannot end up marrying a man if you fucking fail. You have to make it. Do or die bro. You have to fucking make it. You have no fucking choice. Do or die brother. Don't fucking doubt yourself. You have to make it. And भाड़ में जाए. Fuck it. ठीक है. You didn't make it. तो क्या? You didn't make it. तू नहीं कर पाया. सर पे छत रहेगी. शादी हो जाएगी किसी की तेरे साथ. टेंशन नहीं. You won't die alone. तेरे माँ बाप फिर भी तुझसे प्यारी करेंगे. तेरे भी प्यारे प्यारे बच्चे होंगे.
तुझे भी रोटी नसीब होगी, तू भी खाना खाएगा। वो अल्लाह है ना, वो किसी को भूखा नहीं सोने देता, किसी को कीड़े को भी उसके नसीब का मिलता, तुझे भी मिल जाएगा। तो किस बात पे तू डर रहा है? डोंट यू फकिंग ट्रस्ट हिम, डोंट यू ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट हिम ब्रो। नहीं मरेगा भूखा तू। व्हाट आर द ऑड्स यू फेल ब्रो? ओके, सबकी तरह तू भी एवरेज लाइफ गुजार लेगा। यू वुड फेल एंड तुझे भी एक जॉब मिल जाएगी। डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट। इनका लेट मी शो यू, मैं बाहर हूं ना, इन सब की तरह तू भी यू विल एंड अप मेकिंग अ स्टॉल, ओपनिंग अ शॉप, दही की शॉप तू भी खोल लेगा एक। मे बी दे आर डूइंग सो मच बेटर देन यू। अभी इस वक्त मे बी दे आर डूइंग, मेहनत कर रहे हैं, दे आर डूइंग बेटर देन यू। बट हाँ, तेरी ड्रीम्स बड़ी है राइट? इलॉन मस्क बनना है तुझे, सो इन द एंड यू विल गेट अ फकिंग जॉब ब्रो। इनकी जो बेस्ट, इनका देखो, मेरी बात सुनो, योर वर्स्ट केस सिनेरियो इज एवरीबॉडीज रियलिटी। इस छोटू को क्या पता है कि बड़ा होके मैं क्या करूंगा? इस छोटू को क्या पता है? He is no fucking गाड़ी को देख के कह रहा है कि ये गाड़ी कितनी प्यारी है। He has no tension in his life bro, and I want कि किसी भी बच्चे को ना कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। सही है, live your life bro। सब नहीं कर पाया क्या हो जाएगा?